کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے، آخری گولی، آخری سپاہی، آخری سانس تک انشاءاللہ۔ اور 27 فروری آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ کشمیر کے لیے آخری حد تک جائیں گے، آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک لڑیں گے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل آصف غفور کا دو ٹوک اعلان کا دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا وقت آ گیا ہے۔ جنگیں ہتھیار نہیں، ایمان اور جذبے سے لڑی جاتی ہیں۔ مودی سرکار کو فروری یاد رکھنا چاہیے۔ ثابت قدمی پر کشمیری بھائیوں کو خراج تحسین۔ معیشت اتنی بھی کمزور نہیں کہ جنگ نہ لڑ سکیں۔ عزت اور کشمیریوں کی مدد کے لیے جیبیں نہیں دیکھیں گے، حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے، ڈی جی ISPR نے واضح کر دیا۔ غیر رسمی گفتگو میں کہا، مودی نے کشمیر کے معاملے پر نو بال کی ہے، چھکا تو لگے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی خواہش نہیں کی، پاک فوج سسٹم کے تحت کام کرتی ہے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل آصف غفور کی پریس بریفنگ، کہا افغانستان میں امن کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے استقبال کیا، معزز مہمان وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 31واں روز، وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گئی۔ خوراک اور ادویات بھی جماعت کا طالب علم جام شہادت نوش کر گیا۔ وادی کا دنیا بھر سے رابطہ منقطع۔ نومبر میں کرتارپور راہداری کھول دیں گے، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا اعلان۔ بھارت سے بات چیت مثبت رہی، تکنیکی مذاکرات تقریباً مکمل ہو چکے، بھارتی وفد کو ڈوزیئر دے دیا، میڈیا سے گفتگو۔ ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، گزشتہ برس کے مقابلے میں برآمدات میں اضافہ ہوا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی نیوز بریفنگ، کا GIDC کے حوالے سے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ وزیر اعظم نے GIDC سے متعلق آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا، اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں حمزہ شہباز کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا، 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کے ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی گئی۔ کراچی میں بارش کو گزرے 2 روز گزر گئے، لیکن صفائی کا کام نہ ہو سکا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بھینس کالونی کچرا کنڈی بن گئی، 500 سے زائد مردہ جانور سڑک پر موجود، لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں، تعفن پھیلنے لگا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ صورتحال آپ نے دیکھی، یہاں 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا، کوئی انتظامیہ کی جانب سے کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی صفائی مفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، جانور مرے ہم اپنی مدد آپ اٹھواتے ہیں۔ مرے ہوئے جانور ہر روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اس سے لوگوں میں بیماریاں بے تحاشا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لوئر دیر میں پولیس وین پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ، ہیڈ کانسٹیبل شہید، 4 اہلکار زخمی ہو گئے، گاڑی کو ندی میں نشانہ بنایا گیا، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اسلام آباد میں ریہرسل کے دوران اہلکاروں پر فائرنگ، زخمیوں نے ساتھی اہلکاروں کے خلاف درخواست دے دی، چیختے رہے ریہرسل ہو رہی ہے، CTF اہلکار جانتے تھے ہم بھی پولیس ملازم ہیں، جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا، منتیں کر کے جان بچائی، درخواست کا متن۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 435 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 30,244 پوائنٹس پر بند، انٹر بینک میں $39 سستا، نئی قیمت $156.23 ہو گئی۔ سمندری طوفان ڈورین بہاماس کو بہا لے گیا، سب تہس نہس ہو گیا، ہزاروں گھر اور گاڑیاں تباہ،
7 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी, दर्जनों लापता, मील फी घंटा की हवाएं, मूसलाधार बारिश, बिजली चमकती रही, पायलट जहाज उड़ाता रहा। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सादिया खौस। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज के बड़े और अहम बयान की। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि कश्मीर के लिए किसी भी सतह पर जा सकते हैं। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भारत जान ले, जंगें सिर्फ हथियार से नहीं लड़ी जाती। दिल्ली को फरवरी की सूरत हाल को याद रखना चाहिए। डीजी ISPR ने दो टोक ऐलान किया कि मसले कश्मीर पर किसी डील का सवाल पैदा ही नहीं होता। दुनिया को समझना होगा कि मसला कश्मीर के हल का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह से मुतालिक सवाल के जवाब में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह नहीं चाहते थे। जो हालात मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हैं वो खित्ते के ओवरऑल इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सेकुलर हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसे फैशिस्ट और इंतहा पसंदी के माहौल में दाखिल हो चुका है जो कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो दो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं उनके दरमियान जंग की स्पेस नहीं होती। भारत को ये बताना चाहता हूँ कि जंगें सिर्फ हथियारों और मैशियत से नहीं लड़ी जाती। जंगें हुब्बुल वतनी के जज्बे, अवाम के एतमाद और सिपाह की काबिलियत पर लड़ी जाती हैं। इज्जत और वकार की कोई कीमत नहीं होती और 27 फरवरी आपको याद रहना चाहिए। मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। आर्टिकल 370 या 35 अल्फा ने कभी भी भारत के कब्जे को जायज करार नहीं दिया था। जो हमारी जद्दोजहद है वो कश्मीरियों के हक खुदरादियत के हसूल की है। अभी कश्मीर का हल हमारा कौमी मफाद है। अक़वाम आलम और ज़िम्मेदार क़ुव्वतें उसमें अपना किरदार अदा करें। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। कश्मीर हमारी शहरग है, इसके लिए हम कोई भी कदम और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, ख्वाह इसकी हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह। ये आप सोच कैसे सकते हैं कि किसी किस्म की कोई डील मसला कश्मीर के ऊपर हम कर लें। ओवर आवर डेड बॉडीज कश्मीर मैंने जैसे कहा है कि हर पाकिस्तान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज। हमारा वेपन डेटरेंस का है और उसके लिए जो भी इसका इस्तेमाल है स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हम चेंज कर देते हैं तो चेंज कर दें। दिस इज देयर चॉइस, देयर डिसीजन। फर्स्ट के बाद सेकंड भी होती है, वही है आप, ठीक है, और डट के खड़े हैं। ये बातें कहने की नहीं होती। डीजी ISPR ने मीडिया ब्रीफिंग के बाद साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कोई सौदा नहीं होगा। मईशत इतनी भी कमजोर नहीं कि जंग ना लड़ सके। इज्जत और कश्मीरियों की मदद के लिए जेबें नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने कश्मीर के मामले पर नो बॉल कर दी है, अब चक्का तो लगेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, बताइएगा। जी, डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 1.5 घंटे पर मुहित थी उसमें बाद में साथियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मोदी ने कश्मीर के मामले पर नो बॉल की है और नो बॉल पर छक्का तो लगेगा। उन्होंने कहा कि मोदी अब बंद गली में जा चुका है। एक सवाल पर उनका कहना कि जंग हुई तो कितने दिन का पेट्रोल और अजनास का जखीरा है, हमने सब सोचा हुआ है। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि अगर कोई दूसरा मुल्क भारत के साथ मिलकर हमला करता है, उन्होंने कहा हमला होता है, चाहे ये भारत करे या इसराइल करे, हम बिला खौफ और खतर जवाब देंगे। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि जो ये जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर कश्मीर पर सौदेबाजी की, तो उनका कहना था कि कश्मीर का को सौदा करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। कश्मीर का कोई सौदा नहीं और वो खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने हमारे जितने वसाइल हैं वो कश्मीर के लिए है और हम कश्मीर पर अपनी जेबें नहीं देखेंगे कश्मीर पर खर्च करते हुए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कश्मीर के तनाज़े को किसी दूसरे तनाज़े से या फलस्तीन से मुआवजत नहीं दी जा सकती। कश्मीर के लिए जान देने को तैयार है। एक और सवाल पर उनका जवाब था कि मुल्क की मईशत को आर्थिक इक़दाम से चलाया जाता रहा है, अब मईशत की दुरुस्ती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
उनका कहना था कि मईशत को सरतान का मर्ज लाहक था जिसका इलाज किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द मईशत जो है वो दोबारा अपने पांव पर खड़ी होगी। उनका कहना था कि कौमी मईशत और कौमी सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है और उनका कहना था कि कोई सी मुल्क की मईशत रातों रात खराब नहीं होती और ना ही रातों रात ठीक होती है, इसमें वक्त लगेगा। एक और सवाल पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी मईशत का जो है उसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जंग के लिए तैयार हैं और हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम जंग कर सके। उन्होंने कुलभूषण को रसाई के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कुलभूषण को जो रसाई है वो 5 शराइत के तहत दी। 1 महीने पहले इन शराइत से भारत को आगाह कर दिया था लेकिन भारत ने शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। तमाम भारत को पता चल गया कि उनको ये शराइत कबूल करना पड़ेगी क्योंकि ये कानूनी शराइत थी। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। और अब बात करेंगे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की जो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा अब से कुछ देर कबल दफ्तर ख़ारजा पहुंचे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर का दौरा 1 रोज़ा दौरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों में दो तरफा उमूर और कश्मीर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान की भी पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें तय हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये मुलाकातें इस वक्त जारी हैं, क्या बातें अभी तक सामने आई हैं कि मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई है? जी, आज की इनकी मुलाकातों का फोकस जो है वो जो इस वक्त सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर की वही है और जो खित्ते में टेंशन है भारत की वजह से उस मामले पर तबादला ख्याल हो रहा है। आज की मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में जो जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं और खित्ते में अमन अमान की मखदूर सूरत हाल है उसको उठाया गया है। इसके अलावा 5 अगस्त को जो मकबूजा कश्मीर में एक तरफा गैर कानूनी और गैर अहम इक़दाम किया है भारत ने, उसके मुज़मरात और उसके साथ जो मुख्तलिफ खतरात लाहक हैं उसकी वजह से खित्ते में उससे आगाह किया गया है। इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म हुई है और मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को उठाया गया है। फिर ये भारत के ये भी बताया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कि भारत के जो एक तरफा इक़दाम हैं ये न सिर्फ ये है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के भी मुनाफी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों वज़ीर ख़ारजा के सामने इस मामले को भी उठाया है। गुज़श्ता 1 माह से जो कर्फ्यू की कैफियत है मकबूजा कश्मीर में उसकी वजह से तकरीबन 80 लाख जो आबादी है मकबूजा कश्मीर की उसकी जिंदगियां जो हैं वो खतरे में है, यरगमाल किसी कैफियत है। और ये बात भी बताई गई है कि खुराक और अद्वियात के हवाले से इस कदर तशवीशनाक सूरत हाल है कि अब ये इन चीज़ों की बाकायदा किल्लत वहाँ पर हो गई है। इसके अलावा जो अब तक OIC और दीगर मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उन पर जो मौक़िफ़ सामने आया है इस मामले पर उस मामले को भी उठाया गया है और ये कहा गया है मुस्लिम ममालिक से, सऊदी अरब और अरब अमारात से कि OIC के लेवल पर इस मामले को उठाया जाए और ताकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का खात्मा हो सके और मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी जबरन से उनको निजात मिले। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी आपका। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं, जहां कर्फ्यू और पाबंदियों का आज 31वां रोज है। घरों में खाना नहीं है, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं। मकबूजा वादी के अवाम कैद में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कारोबार तबाह हो गया है, ताजरों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी। कर्फ्यू और पाबंदियों का आज 31वां रोज है। कश्मीरी घरों में मैसूर है जबकि नक्लो हमल और मुवासलाती राब्ता मुनक़ता है। खुराक की शदीद किल्लत है जबकि कश्मीरी फाकों पर मजबूर हैं। कारोबार तबाह हो गए, ताजरों को करोड़ों के नुकसान का सामना है। निज़ाम जिंदगी मुंजमद हो गया। वादी में क्रैकडाउन और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हजारों अफराद को गिरफ्तार और नजरबंद किया जा चुका है, जबकि कश्मीरियों पर भारतीय फौज अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रही है।
بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ OIC کے ہیومن رائٹ کمیشن نے بھارتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کرفیو اور مواصلاتی نظام معطل ہے۔ رپورٹ میں بھارتی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ضلع کوٹلی میں مقبوضہ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جانے والی ریلی کے شرکاء پر بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے امتیاز اوان سے۔ جی امتیاز اوان، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ریلی پر؟ جی، یہ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے علاقہ چڑوئی سے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کی اس پار بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے سول سوسائٹی نے ایک ریلی نکالی، اور ریلی جب لائن آف کنٹرول کی جانب بڑھی تو مقامی انتظامیہ نے مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ریلی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے، اور اس موقع پر چند نوجوان جو ہے وہ انہوں نے لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کوشش کی اور ان کو بھی روکا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ کے نتیجہ میں ایک نوجوان جو ہے وہ جو جھنڈا لہراتے ہوئے زخمی ہوا، اور اسے فوری طور پر مقامی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سے اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹلی پہنچا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ جوش و جذبہ جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے سیز فائر لائن کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ کسی بھی وقت اس لائن کو اپنے پاؤں کے نیچے رون کر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا شکار اپنے بھائیوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ کیری سیکٹر میں بھارتی فوج کی ریلی پر فائرنگ، بھارتی فائرنگ سے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے امتیاز اوان، بہت شکریہ آپ کا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ تنازع پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت مسئلہ حل کرنے کے لیے بامقصد مذاکرات کریں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک ریب نے ایوان میں اراکین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ We certainly will be scrutinising and looking carefully to see that they're respected. I have already referred not just to the UN Security Council resolutions but the similar agreement. It is not correct to say that we have not been seized of this issue. The issue of human rights is not just a bilateral issue for India or Pakistan or a domestic issue. It's an international issue. An injustice that the sons and daughters of Kashmir face on a daily basis. And that situation has now escalated as a result of the revocation of Article 370 and 35. And the humanitarian situation as a result of the blockade. The reality is we see up to 10,000 people arrested without due process. We see food shortages, we see medicine shortages. This is a humanitarian crisis. کرتارپور راہداری پر اٹاری میں پاک بھارت مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت مثبت رہی۔ راہداری پر پاکستان نے غیر معمولی اقدامات کیے، بھارت بھی لچک دکھائے۔ بھارتی وفد سے مذاکرات کے بعد واگا پر میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ راہداری کا پاکستان کی طرف کا حصہ تکمیل پر ہے۔ نومبر میں کوریڈور کھول دیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ 5000 یاتری بھی آئیں تو خوش آمدید کہیں گے۔ اپنے کام کے انڈین ذمہ دار ہیں جو انہوں نے کرنا ہے، ہم کھول دیں گے جی 550ویں پہ نومبر میں، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور ہماری تقریباً تمام چیزیں مکمل۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا انڈیا کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہے۔ ہم ایک بہت بڑا انیشیٹو لے چکے ہیں، انپریسیڈنٹڈ انیشیٹو لے چکے ہیں، ہم اس پہ آگے چل رہے ہیں۔ ہم وی آر ویری ہوپ فل کہ جی تھوڑی سی وہاں سے پولیٹیکل فلیکسیبلٹی آئے گی تو کام ہو جائے گا۔ ڈوزیئر کی تفصیل میں نہیں بتاؤں گا جی، لیکن بات تو ہوئی، میں نے یہ نہیں کہا بات نہیں ہوئی۔ 5000 والے پہ ہم نے ایگری کر لیا ہے۔ 5000 تو آئیں گے، اور اس سے زیادہ جو کیپیسٹی ممکن ہو پاکستان اس کے لیے ولنگ ہے، جتنا اوپر جا سکے کیپیسٹی کے حساب سے، کیونکہ ہماری سائٹ سے بھی یاتریوں نے پلگرمز نے آنا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے GIDC کے حوالے سے آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی اٹارنی جنرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں وزیر اعظم کا GIDC کا آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا GIDC کا آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ، شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ
आगे बढ़ते हैं, कराची से खबर शामिल करें जहां इंतजामिया की गफलत और नाअहली सामने आई है। मानसून की बारिश के बाद भैंस कॉलोनी में गंदगी, गलाजत और ताफुन के बाइस कई भैंसें मर गई हैं। इस पर सितम ज़रीफी ये कि मुर्दा भैंसें जूं की तूं पड़ी हैं, कोई मुर्दा जानवर उठाने वाला नहीं। मुर्दा भैंसों से उठता ताफुन कई जल्दी और वबाई अमराज का जन्म देने लगा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील नकवी से। शकील नकवी, अपडेट कीजिएगा, इलाके में क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से अब तक यहाँ पर से सफाई करने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंस कॉलोनी में, जहाँ बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त इंतहाई अबतर सूरत हाल है। पूरी भैंस कॉलोनी इस वक्त गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुकी है। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन उसके बाकियात जो हैं वो ताहाल मौजूद हैं। जगह जगह कीचड़, गंदगी और गलाजत के ढेर मौजूद हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो ये है कि यहाँ पर जानवर, भैंसें और गायें मरी पड़ी हैं। यहाँ पर जो रहने वाले इलाका मकीन हैं, जो आबादियाँ इर्द गिर्द की, उनके लिए भी ये इंतहाई खतरनाक बात है क्योंकि वबाई अमराज फूट रहे हैं। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो भैंस कॉलोनी की इंतजामिया है वो भैंसें नहीं उठा रही। मरा हुआ जानवर यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग जो है सरापा एहतजाज है, कह रहे हैं इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। बारिश हुई, पूरी मंडी जो है, पूरा जो भैंस कॉलोनी है वो कीचड़ का ढेर में तब्दील हो गई, दलदल में तब्दील हो गई। किसी ने आकर नहीं पूछा कि क्या सूरत हाल है। अब ये अलमिया एक है कि भैंसें और गायें जो है वो मरी हुई हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, जगह जगह गलियों में मौजूद हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, जो वबाई अमराज का सबब बन रही है। इससे जानवरों की जिंदगी भी खतरे में और जो यहाँ रिहायशी है उनकी भी जिंदगियां जो है वो अजीरन हुई हुई हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है, वक्त हो गया एक ब्रेक।